मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। मेरे बच्चे, सद ही रहे समाए, चंगे चंगा कर मन्ने, मंदे मंदा होए। आशिक ये हो ना आखिए, जे लिखे वरते सो இதே நாளில் 1793 ஆண்டு செப்டம்பர் 28 கொல்கத்தாவிலே ராணி ராஷ்மோனி அவர்கள் பிறந்தார். இவங்களை பற்றி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால், தட்சிணேஸ்வரர் காளி கோயிலை கட்டியவர் இவர் தான். அந்த தட்சிணேஸ்வரர் காளி கோயிலில் தான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் பூஜாரியாக இருந்தார். அப்படிப்பட்ட அந்த தட்சிணேஸ்வரர் காளி கோயிலை பின்னாலேயே கட்டிய ராஷ்மோனி என்பவர் பிறந்த தினம் இன்று. லோகமாதா ராணி ராஷ்மோனி என்று அவருக்கு பெயர். ஒரு ஜமீன்தாருக்கு அவர் மனைவியாக செல்கிறார். அந்த ஜமீன்தார் இறந்துவிட அந்த ஜமீன் பராமரிப்பு நிர்வாகத்தை இவர் கையில் வருகிறது. அதன் பின் தான் தன்னுடைய நிர்வாக திறமையினாலே அந்த பகுதியிலே பல நலத்திட்டங்களை அவர் அறிமுகப்படுத்துகிறார், செய்கிறார், மக்களுக்கு நல்லது செய்கிறார். அன்றைய காலகட்டத்தில் கங்கையில மீன் பிடிச்சா அதுக்கு வரி கட்டணும் அப்படின்னு பிரிட்டிஷ்காரன் நமக்கு போட்ட ஒரு சட்டத்தை இந்த அம்மா போராடி எடுக்க வைக்கிறாங்க. அதனால பிரிட்டிஷ்காரங்க பின்வாங்குறாங்க. மக்கள் எளிதாக மீன் பிடிக்க முடிந்தது. அதே மாதிரி அந்த சமயத்தில் நவராத்திரி உற்சவம் வரும்பொழுது எக்கச்சக்கமான கெடுபிடி பிரிட்டிஷ்காரர் ரொம்ப போட்டதும் இந்த அம்மா போராடி மீண்டும் சுதந்திரமாக மக்கள் நவராத்திரி விழாவை கொண்டாடுவதற்கான ஏற்பாடு செய்கிறார். பின் அவருடைய கனவிலே ஒரு நாள் காளி வந்து எனக்கு ஒரு கோயில் கட்ட வேண்டும் என்று சொல்ல, அங்கேதான் அவர் காளி கோயில் கட்டுகிறார். அந்த தட்சிணேஸ்வரர் காளி கோயிலுக்கு பூசாரியாக யாரும் வரமாட்டேன் என்கிறார்கள். அது மிக வருந்தத்தக்க விஷயம். ஏனென்றால் இந்த அம்மா மிகவும் இன்றைக்கு நாம் சொல்லுகின்ற பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்தவர் என்பதால் அன்றைக்கு இருந்த அந்த சமூக சட்டத்தின்படி பிராமணர்கள் யாரும் இங்கே கோயில் பூசாரி வரமாட்டேன் என்று மறுக்கிறார்கள். அதன் பின் தான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் நான் வருகிறேன் என்று, அவரும் பிராமணர் தான் என்றாலும் கூட நான் பூஜாரியாக வருகிறேன் என்று சொல்லி பூஜாரியாக இருக்கிறார். அது மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக ராமகிருஷ்ணபுரம் அமைகிறது. அந்த காளி தான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருக்கு காட்சி கொடுத்து ஞானம் கொடுக்கிறார். அத்தகைய காளி கோயிலை நிறுவிய ராணி ராஷ்மோனி பிறந்த தினம் இன்று. भवतारिणी कल्याणमयी माँ, दया कर माँ, मुक्ति दे। माँ, अपने माँ से प्रार्थना कीजिए ना, मांगिए ना। देखिए मेरी गरीबी दूर हो सकती है क्या? मैं क्यों मांगू? तू मांग। किंतु तू तो मेरी माँ को मानता ही नहीं। सुन, आज मंगलवार है, प्रणाम करके माँ से जो भी मांगना है मांग, वो अवश्य देगी। मेरी माँ तो चिन्मयी ब्रह्म शक्ति है रे, उनकी इच्छा हो तो क्या नहीं हो सकता। जा, जाके मांग।
आएगा अब देखना। मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे। माँ, तथास्तु। मांगा? वो नहीं मांगा जो मांगना चाहता था। मूर्ख, क्यों नहीं मांगा? जा, फिर से जा, मांग, वो अवश्य देगी। जा जा। माँ, तेरी हाथ तेरी। हे मां, मां, मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे। करुणा माँ। तथास्तु। मांगा जो चाहता था? नहीं, तो फिर? मैंने भक्ति, ज्ञान, त्याग और वैराग्य मांगा। दूर साला, पैसा नहीं मांगा। पैसा पैसा, जा पैसा मांग, पैसा जा। पैसा चाहिए। मां, एक राजा से मुट्ठी भर ताने नहीं मांग सकता। मां, आपने अवश्य कोई जादू किया है मुझ पर। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं कुछ भी नहीं मांग पाया आपकी मां से। शायद तेरे भाग में सुख है ही नहीं। कोई भी मदद नहीं कर सकता तेरी, कोई नहीं। स्वामी जी, सुना है आप बहुत बड़े विद्वान हैं, चाहे तो आराम से खा कमा सकते हैं, फिर आपके हाथ में ये भिक्षा पात्र किस लिए? आप राजा हैं, अपना राजकाज भूलकर अंग्रेजों के साथ शिकार और तफरी में अपना समय क्यों नष्ट करते हैं? केवल आनंद के लिए ही ना? आपके ऋषि मुनि भी अपना सारा जीवन व्यर्थ करते हैं पूजा पाठ और ध्यान में, केवल अपने आनंद के लिए ना? किंतु एक जानवर भी दूसरे जानवर को बिना प्रयोजन नहीं मारता। फिर आप क्यों मारते हैं उन्हें? मुझे यह अर्थहीन लगता है। अर्थहीन? हमें मूर्ति पूजा अर्थहीन लगती है। ये लोहे के टुकड़े, ये पत्थर, ये लकड़ी, ये मिट्टी के लौंदे को भगवान मानकर इन्हें पूजना हमें समझ में नहीं आता। दिस इज नॉनसेंस। क्या है ये? ये तस्वीर किसकी है? हमारे पिताजी की। क्या तुम इस पर थूक सकते हो? हमारे पिताजी पे? ये पिताजी कहाँ हैं? ये तो उनकी तस्वीर है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, रक्त और मांस का पिंड नहीं। फिर भी तुम्हें इस तस्वीर में अपने पिताजी के दर्शन होते हैं कि नहीं? होते हैं। महाराज मंगल सिंह जी, इसी तरह
एक भक्त कोई धातु, लकड़ी, मट्टी या पत्थर के टुकड़े को नहीं पूछता, उसमें उसे अपने भगवान के दर्शन होते हैं। विश्वास अंधा है, अनुभव ही सत्य है। विश्वास अंधा है, अनुभवी सत्य है। स्वामी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखें खोल दी आपने स्वामी जी, खोल दी आपने स्वामी जी। मैं पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं अपने हथियार दे दिए, समर्पण कर दिए, और वो हथियार लेकर हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाए, तो क्या करना चाहिए? हिंदू महिलाओं को अपने आप को असहाय या कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर कोई भी रावण किसी भी महिला के एक भी बाल को हाथ लगाता है तो उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और वो ऐसा अपनी जीभ को जोर से काटकर या सांस रोककर अपने प्राणों को त्याग सकती है। वही असली साहस है। मैं अपना हथियार समर्पण नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया। इसको छोड़ो। अगर मैंने अपने भाई बहनों की रक्षा के लिए एक सुई का भी इस्तेमाल किया हो, एक किल का भी इस्तेमाल किया हो, वो भी समर्पण नहीं करूंगा। तुमने हमें तुम्हारी जिद और मेरे धर्म के बीच चुनने को कहा है। मैंने अपना धर्म चुना है। Calcutta erupted in riots following the Muslim League's Direct Action Day demanding a separate Muslim homeland as the British prepared to leave India. Amidst the chaos, one Hindu man stood defiant and picked up arms. Gopal Chandra Mukherjee, better known as Gopal Patha, emerged as a protector of the Hindu community against Muslim mob violence. With unyielding courage, Mukherjee rallied Hindu youths to fight back, meeting aggression with aggression in the heart of Kolkata, while also providing shelter to the homeless and the widows. Gopal Patha's leadership saved thousands of Hindu lives, preventing Calcutta from falling into Pakistani hands. जब इस्कॉन ने बांग्लादेश की रक्षा की, 70s के दशक में विश्व के सबसे बड़े म्यूजिशियंस में शुमार पंडित रविशंकर और बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन, श्रीला प्रभुपाद और इस्कॉन के बहुत बड़े भक्त थे। इन दोनों ही लेजेंड्स ने कई बार कहा है कि इस्कॉन और हरे कृष्णा ने उनकी म्यूजिक और जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसके वो हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। इसी वजह से 1971 बांग्लादेश जेनोसाइड में जब पाकिस्तानी चैतन्य महाप्रभु की धरती पर जुल्म कर रहे थे और बंगाली लोगों को यातनाएं दे रहे थे, तब पंडित रविशंकर और जॉर्ज हैरिसन के बीटल्स बैंड ने न्यूयॉर्क में कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश का शो आयोजित किया, जिससे कलेक्ट हुए $12 मिलियन का रिलीफ फंड बांग्लादेश को भेजा गया। ना उन्होंने बांग्लादेशियों का मजहब देखा और ना ही उनकी मान्यताओं के बारे में सोचा, बस निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा दी। पर आज उसी बांग्लादेश में इस्कॉन के ही मंदिरों और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को जला दिया गया है।